हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, सो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है वो समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ द जनरल एग्जांपल ऑफ अ वीक एसिड एंड द वीक बेस। ओके, चलो विल गो विद द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ अ वीक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कर लो कि HA इज अ वीक एसिड, ओके, विच डिसॉल्व इन अ वाटर एंड इट डिसोसिएट। अब डिसोसिएशन होगा उसका, सो इट विल नेचुरली फॉर्म H plus ions and A minus ions. Okay, so HA gives H plus ions and A minus ions. Now the equilibrium constant called that acid dissociation constant for equilibrium is written as Ka is equal to, where K यानी dissociation constant and A stands for dissociation constant of acid. Okay, Ka यानी K means dissociation constant, okay, and A stands for acid, so Ka means dissociation constant of acid. Actually in words we can say that it is the ratio of concentration of a product to the concentration of a reactant. Dissociation constant क्या है? It is the रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन से हैं? H plus ions and A minus ions. Reactant कौन सा है? HA. So here Ka is equal to concentration of product, that is H plus ions into concentration of A minus ions divided by concentration of HA. Understood? So this is actually known as dissociation constant. Similarly, for the dissociation of base, we can write BOH, that is general base containing OH minus ions. Correct? It forms H plus B plus ions and O minus ion over there. So BOH dissociate in water to forms B plus ions and OH minus ions. Now here the equilibrium constant for the base dissociation constant is written as Kb is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus ions divided by concentration of BOH. समझ गए? Kb इज इक्वल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अब BOH उस पर्टिकुलर सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट आयंस कौन सा है? B प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस, और उसके रिएक्टेंट कौन सा है? BOH. So concentration of B plus ion into concentration of OH minus ions, these are the product, divided by concentration of a BOH, that is the reactant, is actually said to be Kb. Understood? So ये Ka and Kb ये दोनों है dissociation constant for acid and base respectively. Ka is known as dissociation constant for acid and Kb यानी dissociation constant for base. B यानी base. Understood? Okay. So here we studied what the dissociation constant of weak acid and weak base. यहाँ पे हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ लिया। ओके, क्या कंसिडर किया हमने? जनरल एसिड कंसिडर किया। HA डिसोसिएट होता है टू फॉर्म्स H प्लस आयंस एंड A माइनस आयंस। उन दोनों का रेशो किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो एक्सप्लेन करता है वहाँ पे डिसोसिएशन। सो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. Similarly BOH gives the B plus ions and OH minus ions, so Kb is equal to concentration of B plus ions into concentration of OH minus ions upon concentration of BOH. So based on that only we can actually define Ka and Kb, dissociation constant of acid and dissociation constant of base. Okay, so let's see the definition. Thus the dissociation constant of a weak acid is defined as equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid. Okay, it is defined as what? Equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid. Similarly, dissociation constant of weak base is also defined as equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak base. Understood? Acid के लिए क्या है? Equilibrium constant for dissociation constant equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid, and for the base equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak base. Understood? So this is all about the dissociation constant. Okay, अब dissociation constant का ही हम लोग हेल्प करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से देख लेना है। ओके, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस दोनों के लिए हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। वीक एसिड जनरल एसिड HA कंसिडर करेंगे, वीक बेस भी BOH। एक बार आपने वीक एसिड के लिए समझ रही है तो वीक बेस के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेट हियर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक एसिड। ओके, एक बार पहले वीक एसिड वीक बेस देख लेते हैं। क्या है वीक एसिड एंड वीक बेस? ओके, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब ये इलेक्ट्रोलाइट को नाम क्यों दिया है वीक?
Okay, why it is said why these are said as weak, why not strong? Because weak acids are dissociate partially. Okay, अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे सो वहाँ पे सुना होगा दैट वीक सब्सटेंस और वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली बट डिसोसिएट पार्शियली. सिमिलरली वीक बेस भी क्या होते हैं, दे गोइंग टू डिसोसिएट पार्शियली व्हेन यू डिसॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर. स्ट्रॉन्ग बेसेस आर ऑल्सो कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर. अंडरस्टूड? ओके, तो चलो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लेते हैं फॉर द वीक एसिड ओनली. ओके, एज वेल एज वीक बेस. चलते हैं फिर अ वीक एसिड. नाउ हियर consider again we are going to consider the weak acid that is HA और उसका equilibrium reaction देख लेते हैं. that is HA in aqueous form gives HA H plus ions and A minus ions. ठीक है. ओके, HA एक वीक एसिड है जो कि डिसोसिएट हुआ, क्या फॉर्म हुआ, H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस. करेक्ट. अब आगे चलते हैं उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे, जो से हमने पहले बार लिखा था वीडियो में, दैट इज Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. वही यहाँ पे लिखना है यहाँ पे. ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दैट एसिड इज Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टाइम. व्हाट इज प्रोडक्ट टाइम, K प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट आयन है वहाँ पे एंड रिएक्टेंट है HA, मॉलिक्यूलर HA, सो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. ओके, नाउ हियर कंसिडर 1 मोल ऑफ एसिड HA is initially present in V dm cube of a solution. Okay, समझ लो कि जो HA है एसिड वो 1 मोल सब्सटेंस है. करेक्ट. और वो किस में डिजोल्व किया हुआ है, कितने वॉल्यूम में डिजोल्व किया हुआ है, वी डी एम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. यानी वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज वी डी एम क्यूब, कैपिटल वी, एंड मोल्स ऑफ द सब्सटेंस और मोल ऑफ एन एसिड इज 1 मोल. करेक्ट. एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज देखो एट इक्विलिब्रियम द फ्रैक्शन ऑफ एसिड डिसोसिएट and that would be alpha and the acid remains undissociated would be 1 minus alpha. अब देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझने की ट्राई कर लो कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है. देखो, वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ एन एसिड जो कि डिजोल्व हुआ है इन वी डी एम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज वी डी एम क्यूब, मोल्स ऑफ एन एसिड 1 मोल. बराबर. अब यहाँ पे ये वीक एसिड है तो वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होंगे, यानी 1 मोल में से थोड़े बहुत मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे टू फॉर्म्स H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस, एंड मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एसिड. बराबर है. एसिड एज इट इज रहेंगे वहाँ पे, थोड़े बहुत ही मॉलिक्यूल, फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स गोइंग टू बी डिसोसिएट. करेक्ट. सो ये देख लो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आ जाएगी तब few of the molecules of acid dissociate to forms H plus ions and A minus ions and most of the molecule remain as it is. So at equilibrium the fraction of acid dissociate would be alpha. जो भी एसिड डिसोसिएट हुए हैं फ्रॉम दैट मॉलिक्यूलर स्टेट वो कंसिडर करेंगे अल्फा, एंड द एसिड विच रिमेन्स अनडिसोसिएटेड वुड बी 1 माइनस अल्फा. क्योंकि देखो 1 मोल में से अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए तो वॉट एवर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहे तो वो 1 माइनस अल्फा कंसिडर कर लेंगे. ओके, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड दैट 1 मोल ऑफ एसिड इज देयर. ओके, तो वो 1 मोल एसिड में से थोड़े बहुत जो डिसोसिएट हुए उसको कंसिडर करेंगे अल्फा. Alpha moles of a substance are formed over there, that is A plus ions and H plus ions and A minus ions, and whatever substance or acid which remains undissociated वो रहेगा 1 minus alpha. Understood? Okay, आगे बढ़ते हैं फिर. Again we'll consider the same reaction. HA gives H plus ions and A minus ions. Okay, extreme left में देख लो आप स्क्रीन पर, amount at equilibrium, okay, in terms of mole, अमाउंट एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मोल. देख लो फॉर HA का कितना रहेगा व्हेन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज देयर. यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि एट इक्विलिब्रियम, देख लो सेकेंड लाइन रीड करना, एट इक्विलिब्रियम द फ्रैक्शन ऑफ एसिड डिसोसिएटेड वुड बी अल्फा. जो भी सब्सटेंस फॉर्म हुए होंगे वो अल्फा है, एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल विल बी 1 माइनस अल्फा. बराबर है. तो अमाउंट विच प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम फॉर रिएक्टेंट HA वो रहेगा 1 माइनस अल्फा, और जो फॉर्म हुआ है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, अल्फा मोल्स ऑफ H plus ions and alpha moles of A minus ions. Understood? So at equilibrium
this product H plus ions and A minus ions are form alpha moles, and the HA which remains undissociated I should say actually, that is 1 minus alpha. अंडरस्टूड. ओके, अब उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा फिर एट इक्विलिब्रियम ओनली, एट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर this undissociated acid as well as dissociated substance, that is H plus ions and A minus ions. concentration जितना वो moles of a substance है in that given volume of a सोल्यूशन वो रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सेंट्रेशन, यानी वॉट एवर नंबर ऑफ मोल्स है उसको डिवाइड कर दो बाय दी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वी डी एम क्यूब. बराबर, हमने स्टार्ट में पढ़ा है वी डी एम क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ओके, सो हियर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एट इक्विलिब्रियम, alpha upon V, that is the concentration of H plus ions at equilibrium, and alpha upon V concentration of A minus ions at equilibrium. समझ गए? ओके, तो एट हियर HA अमाउंट प्रेजेंट कितना है इन टर्म्स ऑफ मोल, एंड हियर कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब ये रिप्रेजेंट किया है. ओके, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वी आर हैविंग, करेक्ट. HA जब डिजॉल्व हुआ फॉर्म्स करता है H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस. सो H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस कितने मोल्स फॉर्म हुए? अल्फा मोल्स. अल्फा मोल्स किस में से फॉर्म हुए? 1 मोल में से. सो वॉट एवर सब्सटेंस अनरिएक्टेड और अनडिसोसिएटेड दैट इज 1 माइनस अल्फा. अंडरस्टूड. सो अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम फॉर HA इज 1 माइनस अल्फा, अमाउंट फॉर्म्स ऑफ H प्लस आइंस अल्फा एंड A माइनस आइंस ऑल्सो अल्फा. ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई वी, concentration of H plus ions अल्फा अपॉन वी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस अल्फा अपॉन वी. ओके, सो यहाँ पे देख लो वो मेंशन कर लिया है. Thus at equilibrium concentration of HA is equal to 1 minus alpha upon V mole per dm cube, and for that concentration of H plus ions that is equal to concentration of A minus ions, क्योंकि दोनों का concentration सेम है अल्फा अपॉन V, that is अल्फा अपॉन V मोल पर dm cube. अब देखो ये दोनों की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन तीनों स्पीसीज की वैल्यू एक्चुअली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, इवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लेस कर लेते हैं. इक्वेशन 1 क्या है अपना, कि A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गया. ओके, तो वो वैल्यू प्लेस करते थे ओवर हियर. सो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस अल्फा अपॉन V इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस अल्फा अपॉन V all divided by concentration of HA 1 minus alpha upon V. बराबर है. सो दैट इज Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V, ये बच जाएगा. ओके, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 ओवर हियर. ओके, कंसिडर करो कि इफ C इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड which is in mole per dm cube. okay, small c है वो है initial concentration before the dissociation. okay, in terms of a mole per dm cube, and V is the volume in dm cube. so C is actually represented by 1 upon V. 1 upon V is equal to C, ये हमने 11th में भी पढ़ा है. then C is equal to 1 upon V. रिप्लेस करते हैं that 1 upon V by C in the equation number 2 over there. so Ka is equal to क्या आ जाएगा? देखो Ka is equal to अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि के इक्वेशन नंबर 2 देख लो, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V है, दैट इज 1 अपॉन V. तो 1 अपॉन V विल बी रिप्लेस बाय C ओवर देयर. सो सी द इक्वेशन नंबर 3, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा. ओके, देख लेते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं. देखो HA इज अ वीक एसिड. HA इज व्हाट? इट इज़ अ वीक एसिड है. वीक एसिड है तो वो पार्शियली डिसोसिएट होगा. बराबर, पार्शियली डिसोसिएट होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा जो भी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू होगी. यानी 1 मोल में से समझ लो 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ, 0.99 मोल रिमेन्स एज इट इज ओनली. अंडरस्टूड. सो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, एंड वी कैन से दैट इट इज नियरली इक्वल टू 1 ओनली. दैट्स वाई वी कैन टेक ओवर देयर दैट 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1. ओके, एज HA इज अ वीक एसिड जो कि पार्शियली डिसोसिएट होगा, सो फ्रॉम 1 मोल ओनली 0.1 मोल इज डिसोसिएटेड, सो 0.99 मोल रिमेन्स एज इट इज. सो नॉट मच डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA over there, and that's why the degree of dissociation will consider is nearly equal to 0, और 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है. दैट्स वाई. ओके, तो अगर इफ वी टेक 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, सो व्हाट विल हैपन टू द इक्वेशन नंबर 3 ओवर देयर? इक्वेशन नंबर 3 चेंज हो जाएगा. Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन C डिवाइडेड बाई, इंस्टेड ऑफ 1 माइनस अल्फा विल टेक 1, सो डिवाइडेड बाई 1. सो डायरेक्टली आई हैव रिटन ओवर देयर Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, और
Ka is equal to alpha square upon c, because c alpha square upon v, because c is 1 upon v, so Ka is equal to alpha square upon v. So overall equation, that is the fifth equation, is alpha is equal to under root Ka upon c, or alpha is equal to under root Ka into v. Okay, alpha is equal to under root Ka upon c, or alpha is equal to under root Ka into v. Please remember this, Ka upon c रहेगा और Ka into v रहेगा. Okay, this is the fifth equation, and this fifth equation is representing the Ostwald dilution law. Okay, so Ostwald dilution law की definition भी पढ़ लेते हैं. That's upper equation implies that the degree of dissociation of a weak acid, because alpha is a weak acid, no, degree of dissociation, so degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of the concentration. Okay, inversely proportional to the square root of the concentration, or directly proportional to the square root of the volume of the solution containing 1 mole of weak acid. Understood? So this is called the Ostwald dilution law. अंडरस्टूड. एक बार वापस पढ़ लेते हैं, बिकॉज इसी से हम लोग पढ़ेंगे दिस वन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द वीक बेस, और वो बहुत ही ईजी है अगर ये आप अच्छे से समझ लो तो. देख लो, एच ए वीक एसिड है, H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस फॉर्म करेगा. डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, दैट इज Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. ओके, कंसिडर करो 1 मोल ऑफ HA है अपने पास इन VDM³ ऑफ अ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम. This one, the concentration of H plus ions and A minus ions, or the whatever the fractions of acid dissociate would be alpha, and acid which remains undissociated, that is 1 minus alpha. So say हम लोग लिखेंगे the moles at present at equilibrium for HA 1 minus alpha, for that H plus ions alpha, A minus ions alpha. Concentration at equilibrium 1 minus alpha upon V, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी. यही कॉन्सेंट्रेशन हम लोग प्लेस करेंगे इनटू द इक्वेशन नंबर 1. सो के इज इक्वल टू अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई वी, दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन वी. ओके, इफ सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, initial concentration of an acid, and V is the volume of the solution, so C is equal to 1 upon V होगा. तो in the equation number 2, that 1 upon V is replaced by C, so we'll get the equation number 3, K is equal to alpha square into C upon 1 minus alpha. But for the weak acid, alpha is negligible value only, that's why 1 minus alpha will take nearly equal to 1 only. If we take nearly equal to 1 in equation 3, so we'll get the equation 4. So K is equal to alpha square into C, or K is equal to alpha square divided by V. So alpha is equal to square root of Ka by C, or alpha is equal to square root of Ka into V. Understood? So this is called the Ostwald dilution law equation. Okay, चलो for the same thing we're going to see for the weak base. यहाँ पे कंसिडर कर देंगे weak base BOH डिसोसिएट होगा टू फॉर्म्स B प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस. उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वेशन लिख देंगे, Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, concentration of B plus ions into concentration of OH minus ions upon concentration of BOH. Okay, चलते हैं आगे. फिर again we are consider the same thing, 1 mole of a BOH like that of acid present in a VDM³ of a solution. Correct? At equilibrium क्या होगा, the fraction of the base, because base is weak in nature, so fraction of the base dissociate, and that would be alpha, and whatever the undissociated base will be 1 minus alpha. Correct? डिसोसिएशन इक्वेशन लिख लेते हैं, बेस का BOH का फॉर्म्स B प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस, मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा. देखो सेम है एज दैट ऑफ दिस वन वीक एसिड, मोल्स ऑफ B प्लस आइंस अल्फा, मोल्स ऑफ OH माइनस आइंस अल्फा. कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 minus alpha divided by V. Here for B plus ions and OH minus ions, alpha by V, alpha by V. Correct? So this is the concentration है. Thus at equilibrium concentration of BOH is equal to 1 minus alpha upon V in mole per dm³, and concentration of B plus ions as well as concentration of OH minus ions is equal to alpha upon V mole per dm³. ओके, सब्स्टिट्यूट कर दें इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है देख लो, Kb is equal to concentration of B plus ions into concentration of OH minus ions divided by concentration of BOH. अंडरस्टूड? तो वो वैल्यू कौन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे Kb इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन वी. करेक्ट? सो ओवरऑल इक्वेशन इज Kb इज इक्वल टू इक्वेशन 2 मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी. बराबर. इफ C is the initial concentration present in VDM³ of the volume of solution, so
वन बाई वी रिप्लेस बाई सी इन इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 3 मिल जाएगा। सेम वे वहाँ पे एसिड के लिए के ए लिखा था हमने, यहाँ पे के बी लिखेंगे 1 अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। Again BOH is a weak electrolyte or weak base, so alpha is very much smaller, so 1 minus alpha is nearly equal to 1. Then equation 4 मिल जाएगा, Kb is equal to alpha square into C और Kb is equal to alpha square upon V. So finally the fifth equation, that is Ostwald dilution law equation, we got alpha is equal to alpha square square root of Kb upon C और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी इंटू वी। अंडरस्टूड। सो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इन दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्लेस पे के बी लिखना है। ओके, so the rest of the things remain same only, and that's why the definition is acid word replace कर लेगा base से। the above equation implies that the degree of dissociation of weak base is inversely proportional to the square root of the concentration. Inversely proportional to what? Square root of concentration, or directly proportional to the square root of volume of the solution containing 1 mole of a weak base. Okay, so this is all about the Ostwald dilution law. ओके गाइज, सो यहाँ पे पढ़े गया हम लोग 3 मेजर फैक्टर। वन इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट समझने के लिए है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। करेक्ट। फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के, वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के बी। ओके, उसी की हेल्प लेके हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा, दैट इज़ कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना इन द नोटबुक, और आज के आज ही वो पूरा लर्न कर लेना। ओके, सो ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको, ये बहुत ही ईजी है और एग्ज़ाम में आने लायक है। ओके गाइज, थैंक यू।